reel prepared by me only. No photographer was involved in it. So that's why it's very practical and very crude. I think in 2016 or 2015, we have set up an automatic reeling machine. This is an automatic reeling machine. This is the reel. Here the denier detectors are fixed. See, these are the hands, what you see. They pick up the cocoons. Everything is going automatic. This we have set up in Kashmir, Srinagar. Yes. And is the only machine of its type in northwestern India. In south there are many, but this was the achievement for entire Central Silk Board. Especially Dr. Sardar Singh, he gave the good cocoons, and I could, because of that, set up this unit there. See, the unwinding is going on. So these are the boilers for that, which produce steam. This is the re-reeling process. Big skein formation. Why I showed you this thing, very small I have made it, it should not be boring also. This is the process and this is the development, what we have done. Central Silk Board. That means the automation is possible in every sector. So this is the highest type of a machine, automatic reeling machine. So everything is done here automatically. Cocoon cooking is also done automatically. Cocoon brushing, at the start what you saw, the brushes were there, that paddy straw type of a things. So this machine we had imported from China. We selected a beneficiary, very good beneficiary. I will name him proudly, Mr. Majid Hayat Bhawan, a nice gentleman, very young boy. But we made him to do all exercise for full of 1 year. When we were fully assured that he will do it, then only we have given this machine to him. And you know, he has spent a lot of money for this unit. We have given him 80% of the subsidy. So we don't give the machines to any Aragara because tomorrow it will come to us. We are responsible for each and everything. So many processes take place. And the final decision was taken by my director in Bangalore. He was interviewed there. So that is the importance of quality of cocoons. If you have the quality of cocoons, raw material is good, so we can set up the automatic machines. That's why I am showing this machine. But one more important thing is there, that you should have, yesterday Mr. Amit, Dr. Amit must have told you, as a startup you can start this. But there are many things. Many people come to us. You should have a very good financial background also. To do rearing, it's very easy. At farmers level you can do it. It's not easy, it is very, very cumbersome job. Very labor oriented. That's why we salute them. We are grateful them they are producing the raw material for us. But here we require both the things, marketing skills and the financial background. He spends around 1.5 crores every year in purchasing the raw material. So that much of the amount you should have. It's not only that we are giving the machine, we are giving the subsidy for the machine, but not for the shed and all that. No.
He may get generators or anything else from DIC, but that's also very little. But only thing what gives solace to us, that we supported him technically right from beginning till end. And this gentleman is producing 3A grade quality silk. 3A grade. That our grade of silk starts from A. Below A it's not. International grade is 2A, 3A and 4A. So out of the cocoons what we are producing here, he is producing that type of a silk. Here what we have, here the skill is there, but the machine controls it. It's not that we will put undersized cocoon in that machine and that will be, no. There should have the specific type of a cocoon of uniform size, what Dr. Saab has told, uniform size and shape. So then only you can set up this type of machine. So now he is doing well, and now he is going in fabric manufacture also. He has brought the machines from Punjab weaving looms. So we hope this gives us satisfaction, and this is my achievement. And we have given technical support to Jammu Kashmir Industries, which was in a very shabby state because of the floods and all that, everything. We supported them, and they could establish around 40 power looms and 10 shutterless looms, very high quality looms, where the production is so high. So that gives the satisfaction. It's not खाना पूर्ति के लिए हम लोग नहीं करते हैं. That is our aim. तो ये तो मैंने आपको बताया. But below this, there are other types of machines also. Reeling starts with charkha reeling. Then the cottage basin. Then the semi-automatic, that is multi-end reeling machine. And this was the final automatic reeling machine. So now we are propagating this type of machines. Number of machines we have set up in South. Why? We are not able to set up more number of machines here because we have here only 1 or 2 crops. That is the main constraint we are having here. But in South, regular cocoons are coming daily basis. As if you go in Sabzi Mandi and you purchase daily tomato, प्याज वगैरह सब ले लेते हैं, ऐसे ही वहाँ पर कोकोन मार्केट सब दिए, डेजिग्नेटेड मार्केट सब दिए. तो डेली thousands of kgs you will get. So the purchasers, they go there, purchase the cocoon as per their requirement. मान लीजिए उनको चाहिए आज के लिए 10,000 किलो चाहिए, या किसी को 700 किलो चाहिए, किसी को 500, किसी को 100 किलो चाहिए. So he purchases that, reels it out and sells it the silk. So वो chain वहाँ पर बनी. But whereas in our place here, we have to store the cocoons. We have to purchase in that very specific season, क्योंकि उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा. उन्हीं 1-2 महीनों में हमने परचेज करना है. सो यहाँ पर वो एक प्रॉब्लम है कि for the entire year he has to store the cocoons. There it becomes more difficult and more careful one has to be. ठीक है. Now coming to this chart, this is the chart, a flow chart of post-cocoon activities. Where from the post-cocoon activities start? From cocoon marketing. The cocoons come to the market. Then cocoon drying. But here in our area, these two processes are reverse. Here the cocoon drying takes place first, then the cocoons come for marketing. Whereas in South, they bring the green cocoons only to the market and they get sold out. But here, because of the different problems, different topography, different areas, we are propagating that also to some level, very little quantity. We were able to sell in green stage in J&K.
But here in Uttarakhand, the entire cocoon marketing is done at green stage only. That means the farmers, rearers bring the cocoon to the market at green stage and sell it out. Then their fatigue is over, tension is over. Because otherwise, if the cocoons are not dried or sold within that stipulated period, so आपको 6 दिन तो लगेंगे उसमें प्यूपेशन फॉर्म में, उसके बाद हार्वेस्टिंग, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर क्लाइमेट दैट टाइम, तो आपको अगले हफ्ते में उसका इमर्जेंस हो जाएगा। अगर ठंडा है तब थोड़ा सा और ये हो सकता है, बट इफ़ इट इज़ ज़्यादा गर्म है तो जल्दी भी हो सकता है। सो दैट्स वाई बिफोर इमर्जेंस टेक्स प्लेस वी हैव टू ड्राई दैट कोकून्स, वी हैव टू स्टाइफल दैट कोकून, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइंग। तो वो ड्राइंग के भी स्टेजेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। देन कोकून स्टोरेज, दैट मीन्स व्हेन कोकून्स आर ड्राइड वी हैव टू स्टोर देम। अब स्टोर हमने करके रख लिया, ऐसे रख लिए, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज वी हैव स्टोर दिस, ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोकून, व्हाई आई हैव केप्ट दिस एनवेलप हियर। ये एक प्लास्टिक चीज़ है, इसमें कोई एरिएशन नहीं हो रही है। You see, you can see the fungus has already developed. So if a person who is purchasing the cocoons for 1 crore rupees, वो ऐसे रखेगा तो क्या होगा उसको? That's why it's very important. We have to store these cocoons in cotton, linen bags और jute bags. Jute bags भी कौन से? वो प्याज वाले जो बोरे होते हैं वो होते हैं, प्याज वाले, जिसमें पतले वाले, नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक में अगर रखेंगे दैट क्रिएट्स ह्यूमिडिटी, और अंदर अंदर ये मॉइस्चर डेवलप होके आपका इसमें दिस होल कोकून विल बी स्पॉइल्ड। नहीं नहीं नहीं, आप वी डोंट प्रोपगेट दैट। मैं समझ गया आपकी, जिसमें प्याज आता है वो आता है, वो भी है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम, हाँ अगर कुछ देर के लिए आपको रखना दैट में बी ओके, बट हियर वी हैव टू स्टोर द कोकून्स फॉर लॉन्ग स्पेल्स। स्प्रिंग में आपका कोकून आ गया, आपको यू हैव टू यूज इट फॉर द एंटायर ईयर, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्याज के बोरे जहाँ पर एरिएशन हो, एंड देन देयर इज अनदर थिंग, आपको स्टोरेज रूम्स ऐसे होने चाहिए। आपको एक केजेस टाइप के होते हैं, लेकिन केजेस में क्या होता है कि वी हैव टू कीप सो मनी, उसमें दैट टेक्स लॉट ऑफ स्पेस। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर एक स्टोरेज रूम है तो कोकून्स को आपको दीवार के साथ नहीं रखना है, ताकि फंगस डेवलप ना हो, मॉइस्चर उसमें ना आ जाए, कीड़ा ना आ जाए। लेकिन उसमें नीचे हमने जहाँ पर भी एक स्टेज टाइप का बनाना है, एक शेल्फ टाइप का, बैम्बू का बनाइए, किसी का बनाइए, बिकॉज वी डोंट प्रोपेगेट कि बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर लीजिए, एक तो वो स्पेस टेकिंग भी है। देन यू कैन स्टैक दीज बोराज ऑन दैट स्टेज, और उसके नीचे हमने रखने हैं कुछ ऐसे मेथड्स सो दैट द एंट्स शुड नॉट अटैक देम। तो जनरली वी कीप द वाटर बॉल्स, या कुछ जो हमारी लक्ष्मण रेखा होती है, या कुछ डी वगैरह जो है वो हम नीचे, बट इट शुड नॉट टच द कोकून, अदरवाइज वो टच हो गया कोकून को, इट विल स्पॉइल, वो फिलामेंट वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। तो वो आ गया। तो स्टोरेज शुड बी वेरी वेरी प्रॉपर, इतना कोकून परचेज करके वो ख़राब नहीं हो। कोकून कुकिंग आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, इट नीड नॉट बी रिपीटेड अगेन। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो दैट बहुत, हाँ आपने कहा कि trying to propagate such kind of machines which you have imported from China, but you said yesterday the best reading thing is when it is done with the help of hands. Do you make every part? that is for the weaving, that is handlooms, not for here. Here what is the problem for us? We have to maintain the denier, so that's why we are propagating this denier। हमारा मेन जो है मशीन जो मैंने कहा कि बाकी हमारे एक्रिलिक, नाइलन एंड अदर सबस्ट्रेट्स, पॉलिस्टर, इवन कॉटन ऑल्सो, वो मशीन से हम कर सकते हैं। वी कैन फिक्स द डीनियर काउंट देयर, उसी थिकनेस का हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था,
तो कैसे करें? ये तो स्किल है। स्टिल हमारा अभी 60% ऑफ द सिल्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन चरखा सिल्क ओनली, चरखा कॉटेज बेसिन, क्योंकि इतना जल्दी ये नहीं होगा। ये चाइनीज़ हमने इंपोर्ट की है, लेकिन आजकल के स्टेज में हमें इंडिजिनस मशीन भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है। वी हैव गॉट आवर ओन मशीन्स ऑल्सो अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो वो भी आ रही हैं। तो दैट इज़ ऑफ द हैंडलूम, दैट इज़ ऑफ वीविंग, नॉट फॉर रीलिंग। हाँ, वो वीविंग है, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क फैब्रिक। ये तो धागा बनाने के लिए। गॉट इट? नहीं, आपको यस क्या मैं ये जो है, ये जो हमने बनाया है कोकून स्टोरेज एंड कोकून सॉर्टिंग। स्टोरेज तो आपने वहाँ से कोकून मार्केट से लाया है, ठीक है। तो जनरली जैसे मैंने कहा है कि वी ऑलरेडी ट्रेन द फार्मर्स दैट दे शुड ब्रिंग द सॉर्टेड आउट कोकून्स टू द मार्केट। पहला एक टाइम था जहाँ पर वो नहीं करते थे, तो उससे क्या होता था, अगर हमने उसको सॉर्ट करके लाया तो उसको अच्छा प्राइस मिलता था। वो हमने उसको समझाया है, एंड ही गॉट द प्राइस फॉर दैट। तो इसके लिए वो वहाँ पर ही हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब ये जो है, ये स्टोरेज हम कहाँ पर करते हैं? वाई वी डू स्टोर इट एट रीलर्स प्लेस, जिसको इसमें धागा बनाना है। हाँ, एक और है कि फार्मर को भी स्टोर करना, रख के करना पड़ता है टिल इट गेट्स मार्केटिंग, स्पेशली इन J&K। तो व्हाट ही इज डूइंग, वो सन ड्राइंग करता है। जैसे डॉक्टर सदा सिंह ने आपको कहा कि दैट इज नॉट द प्रॉपर वे, वी हैव टू ड्राई इट अंडर ब्लैक क्लॉथ। द रीजन इज, और if we have the hot air dryers, Ushna Kotis, that means we have to produce the hot air and circulate it in a chamber so that the pupa inside gets killed, it doesn't emerge out, so the quality remains okay. If we dry it under sun, what will happen? There are germs in the air, infection, inflammatory damage, swelling, color. Good. And very good, very good. That he has addressed already. उसमें discoloration भी हो जाएगी. It impairs the luster also. But most important thing is, we have in sun rays ultraviolet rays. The ultraviolet rays, they fall on the silk filament कोकून पर, so जहाँ पर वो गिरेगा वहाँ पर वो वीक हो जाता है filament, so the breakages take place. So that's why we recommend hot air drying. Hot air drying can be in a batch form. Batch form means एक मशीन ऐसे होती है, उसमें शेल्स लगे होते हैं, उसमें थर्मोस्टेट्स लगी हुई होती हैं, थर्मोस्टेट से हीट होता है एंड उसके अंदर एक फ़ैन होता है, फैन से वो सर्कुलेट हो जाता है, हवा से वो ड्राई हो जाता है, ठीक है, और इवापोरेट हो जाता है उसका मॉइस्चर, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज एक कन्वेयर टाइप का ड्रायर, उसमें हमने कोकून डाल दिए, तो 5 घंटे के बाद आपको स्टिल वो आपको कोकून ड्राई होके बाहर निकलेगा। इट पासेस थ्रू वेरियस चैम्बर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. So we are propagating that. That comes with this automatic reeling machine. We have that machine in Uttarakhand. We have that machine in Dehradun and Srinagar also with state sericulture department. तो उसको हम propagate करते हैं. तो वो prevent करता है आपकी quality को impair होने से. तो ये एक important factor है. जब आप कोकून बॉयल करते हैं तो आपको वो ब्रेक नहीं होगा उधर. सो इसके लिए हमने ड्राइंग कितने टाइप की होती है. एक तो सन ड्राइंग है, लेकिन वो क्या करेंगे बेचारे, उनके पास है नहीं नट. फिर हमने एक प्रोजेक्ट में उनको ब्लैक क्लॉथ भी दे दिया. अब कुछ लोगों ने खरीदा भी है व्हेन दे सॉ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट. एंड एज आई टोल्ड, व्हेन द पार्टीज सी द इन्फ्लक्स ऑफ गुड क्वालिटी कोकून्स, एकदम वाइट, एकदम फर्स्ट क्लास, उनको मालूम पड़ जाता है ये हमारे कोकून है, उसको ज़्यादा पैसा भी देते हैं एंड दे बाउंस ऑन दैट, एकदम पूरा ले लेते हैं. तो
एक उष्ण कोटि ड्राइंग, वो एक चैम्बर प्रूफ टाइप का, वो हॉट एयर टाइप का ही है, चैम्बर टाइप का ही है, लेकिन उसको हमने वो एक कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ है, रूम होता है वो, उसमें हम ट्रेस डालते हैं तो उसमें ड्राई करते हैं। वो सबसे जो है हमारा कन्वेयर टाइप ऑफ ड्रायर, उसमें क्या कुछ नहीं हमने करना, स्टार्टिंग में कोकून डाल दिया एंड लास्ट में वो कंटिन्यूस वे में वो निकलते जाते हैं। वो उसको कहते हैं, उसमें कैपेसिटी होती है 2 टन्स। हाउ मच इज़ 1 टन? प्लीज प्लीज प्लीज, यू आर राइट। हाउ मच मैडम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये बहुत सारे ये हो जाते हैं, बट दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ मच इज 10 metric tons and 10 tons? What is the difference? Because you are the faculty, that's why I am telling you. What is the difference between 10 tons and 10 metric tons? भाई मैं बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, मैं तो यही पूछूंगा। फिर सर कहेंगे सर आपने तो हमसे ही पूछा है। There is no difference. Metric tons and tons are same. 1000 kgs make 1 ton. So the capacity of this hot air dryer, that conveyor type of a dryer, so we can dry 2 tons during 24 hours. That's why it's called 2-ton conveyor type of a dryer. Then cocoon cooking, I have explained. Cocoon, that is reeling. तो reeling में चरखा, cottage basin, semi-automatic, that is multi-end reeling machine. Most of machines we are having multi-end reeling machines. And उसके बाद automatic reeling machine. Then comes the re-reeling. What I have shown, reeling means winding of the silk on the bigger skein. You got it? I have shown that in my this thing. To make it a standard skein of 1.125 meters circumference. तो वो हमारी फाइनल ये जो स्किन बनती है उसी को रा सिल करते हैं। आफ्टर दैट इज इन द लूज फॉर्म, देन वी डू इट लेसिंग। लेसिंग मैं आपको बताऊंगा, अभी एक स्लाइड आ रही है। लेसिंग मीन्स सपोज आपने वो सिल्क रील कर लिया है, सिल्क इस पर चढ़ा हुआ है, इसको सपोज यहाँ पर 1 2 3 उसको हमने लेस करना है, मतलब इसको इस पोर्शन को सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, ये सेपरेट करना है। बिकॉज व्हेन वी टेक आउट द सिल्क आउट ऑफ दैट इट शुड नॉट गेट एंटेंगल्ड। तो इतना पोर्शन जैसे ऊन में होता है, सो दैट एंटेंगल गुंजल ना पड़ जाए, तो दैट इज कॉल्ड लेसिंग। फिर स्कीनिंग, सिल्क स्कीनिंग, जो मैंने आपको स्कीन बनाया, एक लच्छी उसको मरोड़ के बनाना, दैट इज कॉल्ड स्कीनिंग। देन बुक मेकिंग, बुक मेकिंग मीन्स एक बंडल बनाना, बंडल को हम बोलते हैं बुक, दैट इज बुक मेकिंग। देन आफ्टर बुक मेकिंग वी सेल इट, वी ट्रांसपोर्ट इट, बिकॉज उसको कंप्रेस करके हम, सपोज हमने एक J&K में बनाया, हमें वहाँ भेजना है, बनारस भेजना है, वी हैव टू सेंड इट टू बेंगलोर। ऐसे लूज फॉर्म में तो नहीं बनेंगे, एक कंप्रेस वे में, दैट इज द बुक मेकिंग की मशीन होती है, कंप्रेस करके उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम भेज देते हैं एक बंडल बना के। तो दैट बंडल इज ऑफ 2 kgs, फॉर ऑटोमेटिक इट इज ऑफ 5 kgs ऑल्सो, वो जो बंडल होता है। देन फिर जब वो पहुंच जाता है उधर एक वीवर के पास, इट डिपेंड्स ऑन हिम कि वो whether he wants to twist that silk or not, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसको किस टाइप का फैब्रिक बनाना है वीवर को। तो अगर उसको, जैसे मैंने कहा शिफॉन है, क्रेप है, ट्विस्टिंग से क्या उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। यू गॉट इट? तो एक ट्विस्टिंग मशीन होती है जहाँ पर हम हाई स्पीड पर उसको ट्विस्ट करते हैं। यस, फिर उसमें एक और प्रोसेस है, वी नीड नॉट टू गो इन दैट।
फिर डबल प्लाई, उसको 2 थ्रेड्स को मिलाना, वो अगेन डिपेंड्स ऑन किस टाइप का उसको फैब्रिक बनाना है, 2 प्लाई बनाना है, 3 प्लाई बनाना है, दैट इज़ अ डिफरेंट, वो बहुत ज़्यादा फिर टेक्सटाइल पूरा कराना पड़ेगा। तो मेन है कि ट्विस्टिंग उसको कहते हैं, एक तो स्ट्रेंथ देता है, दूसरा धागे को वो किस टाइप का उसका फैब्रिक बनाना है, ठीक है। एंड देन वीविंग, फाइनली हमारा काम है वीविंग। फाइनली वीविंग भी नहीं है, वीविंग के बाद डाइंग भी होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिनिशिंग होती है, बट सिंस दैट थिंग इज़ नॉट इन आवर मैंडेट, वी डोंट टेल दैट, ठीक है। लेकिन वो भी एक एडिड मतलब ये है, हम इस चीज़ को देखते हैं, दिस इज़ आवर मैंडेट। जब ये बुक मेकिंग होती है तो क्या ये वीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो परसेंटेज सेरेसन कितना होना चाहिए, जैसे आपने कल फुल नो, उसको हम सेरेसन के साथ दे देते हैं। और ये डीगमिंग है नॉट, ये वीवर्स ही करते हैं। यस, मैंने कहा ना उनको, जैसे मैंने कहा सेरेसन कितना होता है, होना चाहिए एक 23 to 25% होता है, ठीक है। किसी में होता है 18% भी होता है, वो डिपेंड्स ऑन द रेस ऑल्सो, बट हम याद रखेंगे 23 to 25%, 23 to 25, बिकॉज वी डू द टेस्ट दैट इज़ कॉल्ड डिगमिंग टेस्ट, डिगमिंग लॉस टेस्ट। जब इनके कोकून हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं इसमें कितना गम निकलेगा, वो पता होना चाहिए एक व्यूअर को भी, क्योंकि उसको लॉस नहीं होना चाहिए भाई कितना मेरे को कोई। देन आउट ऑफ दैट आई टोल्ड यू दैट इज़ अ रफ आइडिया, आउट ऑफ दैट 25% वो 40% निकालेगा, 60% निकालेगा, लेकिन मेनली है 23 to 25%, ठीक है। 75% इज द फिब्रोन, और उसमें से वो कितना वो रखेगा, इट डिपेंड्स ऑन हिम, ठीक है। कई लोग जो है पूरा निकाल लेते हैं, आफ्टर फैब्रिक मेकिंग पूरा ही निकालते हैं, सो दैट इट बिकम्स मोर सॉफ्ट। तो दैट इज़ रिक्वायर्ड, वो नेचर ने रखा है। एट द टाइम ऑफ वीविंग वी रिक्वायर दैट, जैसे टू मेंटेन अवर इलास्टिसिटी, उसमें बोथ द थिंग्स हैव टू बी डी, इट शुड बी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हम देखते हैं, इलास्टिसिटी भी हम देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू सस्टेन द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स एट द टाइम ऑफ वीविंग, ताना माना के टाइम, इट शुड नॉट बिकम ब्रिटल। टाइम इज हियर, एक मिनट, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये तो हमने कोकून मार्केटिंग में हमने ये डॉक्टर साहब ने बताया हमने किस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, ठीक है। दिस इज़ द मार्केटिंग मैकेनिज़्म, मैंने यहाँ पर लिखा है मैकेनिज़्म जो है हमारे स्टेट को या दूसरे स्टेट को, उनको हमने एक पैसा दिया हुआ हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने, तो वो उस पैसे से कोकून किसके लिए, रीलर्स के लिए परचेज करते हैं, बट द 30% ऑफ द मनी रीलर को देना है, एंड 70% वो क्या है, हमारे पैसे से वो कोकून ले लेता है। दिस इज द एड व्हाट वी आर गिविंग टू द रीलर्स इन दिस एरिया, नॉट इन साउथ, इन दिस एरिया, बिकॉज इतना ह्यूज अमाउंट परचेज करना है, बट we keep that under our storage, in the storage of Directorate of Sericulture, and as and when he releases the cocoon he has to pay back the money. तो ऐसे उसको नहीं देना। तो मार्केटिंग मैकेनिज्म मैंने मतलब आपको इस यहाँ पर लिखा है, लेकिन आई वांटेड टू शो यू कि मार्केट्स कैसे होते हैं, ये फार्मर्स कितनी मेहनत करके लाते हैं। अब इसमें ये स्लाइड मैंने डेलिबरेटली लिखी है। अब आपको ये पूछना चाहिए था मुझे, सर इसने तो प्लास्टिक बैग में लाया है कोकून, लेकिन दैट इज़ रॉन्ग। तभी मैंने ये स्लाइड रखी है कि प्लास्टिक बैग में नहीं लाना है, तो उसमें मॉइस्चर क्रिएट होता है, उसमें उसको ये फिर जो कोई मैडम मुझे पूछ रही थी, सर उसको कैसे मालूम पड़ता है कि उसमें डिफेक्टिव कोकून इतना है। आपको हमारे जो रीलर्स है इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, दे उसको ऐसे उठा के उधर से इधर से स्मेल से उनको मालूम पड़ता है ये किस सीज़न का है। उस टाइम बारिश तो नहीं हुई, एंड हम तो टेस्टिंग वेस्टिंग, हम तो मार्केट्स में भी रहते हैं, हमारा वहाँ पर अप्रूवेट वगैरह भी रहते हैं, बट दे डू इट ऑफ देयर ओन ऑल्सो। वो अगर मान लीजिए इट्स अ फ्रेश कोकून, वो उसको मुंह में डाल के फिर वहाँ से करके थोड़ा सा वेट करके वो देखते हैं कि सिल्क निकल रहा है कि नहीं। सो दे आर एक्सपर्ट। आई टोल्ड सम मैडम कि मैं आपको बताऊँगा, शायद आपको बोला था कि मैं आपको बताऊँगा उस टाइम। तो इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, वी कैन नॉट चीट एनीबॉडी। अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो वो कहेगा कि भाई आपने पानी भी मिलाया है इसमें।
ठीक है, लेकिन ही मे नॉट हैव डन इट, बट अगर उसमें इसने इस बैग में रखा है, 2 दिन उसने स्टोर करके रखा है, एक तो उसमें खतरा भी है, सेकेंडली उसमें मॉइस्चर हो गया तो उसको तो वो तो लेगा नहीं, क्योंकि उसमें वेट नहीं होना चाहिए, वो स्टिकीनेस फिर और ज़्यादा हो जाएगी, फिर निकालना मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए, फिर इसको आपको ये परचेज करके ये यहाँ से मालदा एंड वेस्ट बंगाल, आपका बनारस, ये बैग्स में स्टैक करके लेते हैं। अब ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, दे कम विद ह्यूज स्टैक्स ऑफ मनी। ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं इनको, ये जब वहाँ से आते हैं, आजकल तो अब ऑनलाइन हो गया है, जब हमने देखा है ये पूरा इसमें लोंगी में लाते थे पैसे। दे आर बिग पर्सनस देयर, बहुत ये जो यूनिट्स इनके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे काम कर रहे हैं, जो हमारा J&K या इस एरिया का नहीं करेगा। ये गरीब आदमी नहीं है, लेकिन इन्होंने शुरू से काम किया है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं। तो ये इसको फिर क्या है, परचेज करके, हालांकि ये ड्राई कोकोन है, इसको हवा दे रहा है सीधे, तभी मैंने ये स्लाइड रखी है। दिस इज द कोकोन मार्केट। अब ये शेयर ऑफ इनकम टू द डिफरेंट ग्रुप्स, तो इसमें आप देख सकते हैं कितना कितना परसेंटेज कोकोन ग्रोवर को कितना जाता है, रीलर को कितना जाता है, ट्विस्टर को कितना जाता है, ये सारा गैमेट है इन होल चेन। इसमें सबसे कम जो है हमारे रीलर को मिलता है, क्योंकि उसका बहुत ही एक रिस्क भी रहता है, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया, क्वालिटी ठीक नहीं है, उसका सिल्क ठीक नहीं बना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रॉ क्वालिटी मटेरियल, ये तो सारा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉर्टिंग ऑफ कोकोन्स आई हैव एक्सप्लेन। नाउ दिस इज द मोनोकोकोन रीलिंग, दैट इज एप्रोवेट। इसी मशीन को हमने अभी इसमें करेंगे कोकोन। सो सिंगल कोकोन थ्रेड कितना है, तो इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, फिलामेंट लेंथ, नॉन ब्रेकेबल फिलामेंट लेंथ एंड डीनियर। These are the cocoon characteristics. I think इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, कॉम्पैक्टनेस, ग्रेन, एटसेट्रा, sericin content, defective cocoon percentage, raw silk percentage, that we find out how much of the raw silk we can extract out of it. Then the cocoon parameters. Shell ratio. What is shell ratio? कितना उसमें shell है, पूरा cocoon and with pupa। तो कैसे हम निकालेंगे शेल रेशियो? वेट ऑफ शेल, उसको कट करके वेट ऑफ शेल बाय कोकून वेट, वेट ऑफ शेल बाय कोकून वेट इनटू 100, दैट गिव्स शेल रेशियो। फिर एवरेज फिलामेंट लेंथ, वो हम आपको बताएंगे कितना निकलता है, कितना है, हाउ मच इज द, यहाँ पर इस एरिया में कल मैंने बताया था, यस, ठीक है, नहीं वो तो है इन जनरल एवरेज 850 मीटर हमारे यहाँ पर ये आ जाता है, लेकिन 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर्स, 1200 मीटर्स तक हम प्रयास कर रहे हैं, जो कि साउथ में आ रहा है। एवरेज डीनियर, वो तो मैंने बता दिया आपको, व्हाट इज डीनियर। डीनियर इज वेट ऑफ सिल्क इन ग्राम्स, you can write down also, weight of silk in grams divided by length in meters into 9000. Simple. Weight of silk divided by length of that silk what we have reeled into 9000. That will give you the denier. 9000 is the constant. सिंपल वर्ड्स में, सिंपल इसमें आप कर सकते हैं कि 9000 मीटर में कितने ग्राम्स ऑफ सिल्क आपने, मान लीजिए 9000 मीटर हमने रील कर लिया, उसमें अगर 20 आ गया, 20 ग्राम में 9000 मीटर में उसका वेट आ गया 20, दैट मीन्स 20 इज द डीनियर। इन सिंपल टर्म्स आपको याद रखिए। अब हम नहीं करते हैं ना, हम नहीं करते हैं 9000 मीटर हम नहीं करेंगे। नाउ व्हाट वी हैव डेवलप्ड ए फार्मूला है, उसमें 9000 मीटर वो जो हमने कांस्टेंट रखा है, वेट बाय लेंथ इनटू 9000। कीप इट सिंपल। वही तो मैं कहता हूँ ना, वे करना है उसको। आप जो रील कर रहे हैं, आप जो एप्रोवेट में आपका स्कीन मैंने दिखाया था कल छोटा सा,
भाई इतने कोकून में इतना निकला, तो उसका कितना लेंथ है वो तो आपको उसमें एप्रोवेट में मालूम पड़ जाए। पहले हमें लेंथ मिलेगा, फिर हमें वेट। वे मिलेगा सुखाने के बाद। गॉट इट? ठीक है मैडम, शी इज डॉक्टरेट इन सेरिकल्चर, शी माइट हैव डन इट। ठीक है, ये सब वही है। नाउ रीलिंग पैरामीटर्स, भूख तो नहीं लगी है? खैर अभी तो टाइम है। रेंडिटा, जी। नाउ रेंडिटा, आर यू फाइंडिंग इट ए न्यू वर्ड हियर? एक तो डीनियर मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट इज रेंडिटा? गुड। और कोई? It is not number of cocoons. It is the number of kgs required to produce 1 kg of silk. मान लीजिए आपको 8 किलो में से 1 किलो निकलता है। How much is the rendita? 8. Quantity of cocoons required to produce 1 kg of silk. It's not number of cocoons. नंबर ऑफ कोकून्स 1 kg में वेरी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं। सो फाइनली वी आर कंसर्न्ड विद वेट। जिसने भी बताया आपको वो ठीक ही बताया, लेकिन आपको शायद वो नंबर आपने लिख लिया होगा, बट इट इज नंबर ऑफ kgs रिक्वायर्ड। But we are not taking care of Yupa. नहीं, वही होता है। इसमें 2 होते हैं, वो भी हम ले लेते हैं। सपोज वी इन दिस एरिया व्हेन वी हैव द ड्राई कोकून्स, मतलब फार्मर ड्राई कोकून लाता है, लेकिन साउथ में क्या है, हमें ग्रीन मिलते हैं, तो देयर वी टेक इट ग्रीन रेंडिटा। तो वहाँ पर हमने, या उत्तराखंड में हमें ग्रीन मिलता है, तो देयर हमें मतलब 8 किलो अगर लग रहे हैं, अगर में 8 किलो लगेंगे, इफ द रेंडिटा इज 8, वेदर दैट इज गुड, और इफ द रेंडिटा इज 10, गुड। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कम कोकून्स यहाँ पर लग रहे हैं। अगर आपको 100 ग्राम का भी डिफरेंस आ गया तो वहीं पर फर्क पड़ जाता है। अगर 1 किलो का मीन्स 1000 ग्राम्स का आपका प्राइस है 500 और 600, अगर 100 ग्राम में भी उसका ये है, कितना हो गया? 50-100 रुपये उधर ही हो गया, 50 रुपये। और उसको 1 किलो का नहीं देखना, उसको कितने किलो वो खरीद रहा है, तो यहीं पर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सो रेंडिटा इज नंबर ऑफ kgs ऑफ कोकून रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ सिल्क। अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ ड्राई इनटू, सपोज यहाँ पर ड्राई है, यहाँ पर रेंडिटा होता है 3। So rendita is important for real, real or real. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर रीलर। यस, आपको जितने कम कोकून, मान लीजिए हमें 6 रेंडिटा वाला कोकून मिल गया लॉट, जिसमें हमें 6 किलो में ही 1 किलो निकल रहा है, वो अच्छा है कि जो 8 किलो वाला है, 6 वाला, तभी वो उसको ज़्यादा प्राइस भी मिलता है। दैट इज सुपर ए ग्रेड, वो जो इस ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन में मतलब सिल्क। यस, हर अभी जो ये बेचते हैं हमारे पास लॉट्स कोकोनट्स, वी टेस्ट ईच एंड एवरी पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर्स। देन इम्पोर्टेंट आंसर प्लीज। मार्केट में जब आता है तो वो वहाँ पे टेस्टिंग के लिए होते हैं या? सुनिए क्या होता है वहाँ पर, तो वो लोग कर सकते हैं हाउ मच इज़ द एवरेज फिलामेंट लेंथ, नॉन ब्रेकेबल फिलामेंट लेंथ, एंड हाउ मच इज़ द रिलीबिलिटी। मीन्स वो उधर ही देखते हैं कि वो कोकून गुर रहा है कि नहीं। वो बंगाली क्या कहते हैं, कोकून गुरिच है कि नहीं, मतलब वो घूर रहा है, मीन्स वो निकल रहा है उसमें सिल्क की नहीं, तो उधर ही उनको मालूम। दैट कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस। और उसके पहले क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आस्क, वी गेट द कोकून्स फ्रॉम डिफरेंट कोकून एरियाज, क्लस्टर्स, और फ्रॉम कोकून मार्केट्स। वी टेस्ट इट इन आवर लैब्स, भाई इस एरिया का इतना रेंडिटा है, इसका इतना रेंडिटा है, इतना इसका इतना, तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. सर्टिफिकेट जो बेचने जा रहे हैं उनको सर्टिफिकेट आपको
No, no, no. The certification grading is for cocoons is done itself in the cocoon market. डिफरेंट लॉट्स जैसे मैंने आपको बताया फार्मर्स लाए थे तो वहीं पर ग्रेडिंग होती है उसी एरिया उसी टाइम। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, एक तो हमने देखना है डिफेक्टिव कोकून परसेंटेज। तो डिफेक्टिव कोकून परसेंटेज कैसे हम देखेंगे, एक हम वी टेक बाई वॉल्यूम बेसिस जो हमने अपना मेथड यूज़ किया है, और वी टेक 100 ग्राम्स, उसमें से हम देखते हैं एंड वी टेक आउट द परसेंटेज। एंड सेकेंडली वी सी द फ्लेमेंट लेंथ एंड नॉन ब्रेक उधर ही। एंड एक और उनका है कि ग्रेडिंग मेथड, बट विद दैट वेरीज, दैट इज़ नॉट एक्चुअली द साइंटिफिक मेथड। उसमें यह है कि 600 से 700 कोकून अगर होंगे तो वो ए ग्रेड है, 700 से इतने हैं तो ऊपर हैं तो इतने हैं। सपोज दे टेक हेयर इन ड्राई, 2100 तक है तो आपको ए ग्रेड है, 2100 से 2400 कोकून्स ड्राई में हैं तो बी ग्रेड है, 2400 से ऊपर है तो वो सी ग्रेड है। बट वो पहले डिफेक्टिव कोकून वगैरह नहीं देखते थे, बट दैट कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस। वो हम किसी भी मंडी में जाते हैं, जनरल मंडी में, तो हमें मालूम पड़ जाता है क्वालिटी क्या है। बट आपका जो है टू प्रोड्यूस अ डाटाबेस, देन वी फीड दैट डाटाबेस टू द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड to the state agriculture departments so that they can improve upon the quality and quantity also. And another is reliability. Reliability क्या चीज़ है, मैंने कल भी बताया, the ability of the cocoons to get reeled. तो reliability सिंगल में अगर हो गया तो उसकी 100% reliability। तो reliability of cocoons above 85-90%, that's a very good cocoon। तो कोकून को हम 3 बार तक रिकुक कर सकते हैं। मान लीजिए वो ड्रॉप हो गया, फिर उसको हम दोबारा ले सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ अलाउड। अगर वो एक बार और गिर गया फिर उसको तीसरी बार भी हम रील कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर होगा तो दैट इज़ वो इकोनॉमी को ही बिगाड़ देगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतना डिफेक्टिव कोकून वगैरह कर रहे हैं तो one thing I forgot to tell you, the permissible limit of defective cocoon percentage हर चीज़ में होता है is only 5%। अगर 100 किलो में आपके 5 किलो डिफेक्टिव हैं that is admissible, but not more than that because it adds to the rendita। नहीं तो आपका रेंडिटा बढ़ जाएगा, दैट मीन नंबर ऑफ कोकून्स आपके ज़्यादा लगेंगे, नंबर ऑफ केजीज ऑफ कोकून्स। ड्राई कोकून का है 2.5 से स्टार्ट होता है, एंड यहाँ पर जो हमारा आता है अराउंड 7.7 to 8 अभी का जो हमारा क्वालिटी ऑफ कोकून्स है। लेकिन कुछ एट लेटर स्टेज जो अच्छे कोकून नहीं होते हैं उनका हमें 9 भी आता है ग्रीन स्टेज और 4 इन ड्राई स्टेज। ड्राई एंड ग्रीन का आप डिवाइडेड बाई रेशियो रख लीजिए 3, एक्चुअली इट इज़ 2.8, ठीक है, बट जनरली वी कीप इट हियर 3। इफ वी आर गेटिंग ग्रीन रेंडिटा एज 9 तो यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं ड्राई का, डिवाइडेड 9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 3। देन सिल्क वेस्ट परसेंटेज, उसमें कितना वेस्ट आपको निकल रहा है। तो वेस्ट परसेंटेज कहाँ निकलता है आपको, सिल्क रीलिंग के टाइम में, सिल्क कुकिंग के टाइम में सिल्क वेस्ट निकलता है, जो फ्लॉस है, जो भी हमारा वेस्ट हो रहा है सिल्क, दैट डिवाइडेड बाय द सिल्क वेट, सिल्क वेट, वेस्ट वेट, सिल्क वेस्ट डिवाइडेड बाय द सिल्क वेट इनटू 100, दैट इज सिल्क वेस्ट परसेंटेज। टोटल yes, yes, waste percentage divided by total weight into 100, simple। now post cocoon components, hot air dryers I have discussed I think in length। reeling machines में बताइए, twisting तो आपको ठीक है वो बताया, उसमें ट्विस्टिंग होती है। वीविंग मशीन्स एंड डाइंग मशीन्स जिसमें डाइंग हम करते हैं। कोकून ड्राइंग, कोकून ड्राइंग मैंने आपको बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है हॉट एयर ड्रायर में। नाउ रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर शेड्यूल फॉर हॉट एयर ड्राइंग,
हॉट एयर ड्राइंग के लिए आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? वी स्टार्टेड फ्रॉम 115 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री. मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो. वो क्या करते हैं, यहाँ उल्टा करते हैं, पहले टेम्परेचर रखते हैं 55 डिग्री, फिर लास्ट में ले जाते हैं. बट ये जो है 115 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई वी आर कीपिंग एट द फर्स्ट इंस्टेंस? यस, हमारे को वी हैव टू एक्सट्रैक्ट मच ऑफ द मॉइस्चर इन द इनिशियल पीरियड. तो जो मशीन में हमारे वेंट्स भी होते हैं, जो हॉट एयर ड्रायर है, तो वो उड़ जाते हैं, इट इवापरेट्स, इट शुड इवापरेट. अदरवाइज क्या है, उसमें ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जो नीचे कोकून पर गिरते हैं, विच कंटेन, मतलब वो, हाँ यस, तो विच स्पॉइल द कोकून्स. So this is the temperature schedule. This is for Ushna Koti. Again the same thing, only difference of 5 degrees. Then this is black cloth. If it is done under black cloth, so what is the advantage? Because if it is white, it reflects. So the example what I give in field to the farmers, to my reelers, कि हमारे पहले जो हमने देखा, पता नहीं आप लोगों ने देखा था कि नहीं, हमने तो देखा, हमारी दादी वगैरह जो है नीचे अपने बर्तन को काला वो करती थी. जस्ट क्या टेक्नोलॉजी थी, उनको पता नहीं होगा किस लिए होगा, लेकिन वो करते थे. सो दैट इज़ द रीज़न, इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट. हाँ, कॉपर वेसल्स पर मतलब जो वो तो है, लेकिन ये क्यों है बहुतों को नहीं पता होगा. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट. तो इसीलिए अगर हम ब्लैक क्लॉथ के अंडर करेंगे, बट ब्लैक क्लॉथ कौन सा होना चाहिए? इट शुड नॉट बी वूल, इट शुड नॉट बी पॉलिस्टर. वाई? बिकॉज ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी ओनली थिन कॉटन, प्योर कॉटन. कॉटन को थिन लेयर में उसको डालना है, जो पतला होता है, लिलन टाइप का, एकदम वो उस टाइप का नहीं जो एकदम उसमें बहुत ज़्यादा वो हो, लेकिन इट शुड बी बहुत ही, मतलब बहुत ही पतला उसमें ये होना चाहिए वीव, ताकि उसमें क्या है, इवापरेट होके जो भी मॉइस्चर होगा वो जल्दी से इवापरेट होगा. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट कि जब हमने उसके अंदर थर्मामीटर डाला, कोकून की लेयर रखी हमने, एक थिन लेयर, 1-2 कोकून का ही वो होता है, एंड उस पर ब्लैक क्लॉथ डाला, उसके अंदर जब थर्मामीटर, तो वहाँ पर हमारा अराउंड 70 डिग्री टेम्परेचर था. और जो कोकून हम सन ड्राइंग में 10 दिन में सुखा सकते हैं, यहाँ पर हम 4-4.5 दिन में ही सुखा सकते हैं. ये तो हो गया जब आपके पास कोई मशीन वगैरह अवेलेबल नहीं है. जी हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ. अगर आप सन ड्राइंग ऐसे करेंगे इन ओपन, एक तो वो ख़राब है, क्वालिटी गेट्स डिटेरिएटेड बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, अल्ट्रावायलेट रेज, सॉइलिंग एटसेट्रा, इम्पेयरमेंट ऑफ लस्टर. एंड दूसरा है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 10-11 दिन उसमें लगते हैं. इसमें आपको 4-4.5 दिन में ही ये पूरा सूख जाता है. सूखना कैसे मालूम पड़ जाता है आपको, पूरा सूख गया, इट आवाज़ से खटखट करेगा वो. आई विल गो फास्ट. ये सारा मैं जो बताया, मैं आपको बताया, देखिए इसमें 7 से 9 दिन हमने रखा है, लेकिन ऑल जनरली यहाँ पर 10 दिन वो लेता है अगर हम सन ड्राइंग. दूसरा 4.5 से 5 अंडर सन ड्राइंग. फिर कोकून कुकिंग, ये मैंने आपको बताया, 2 पैन 3 पैन. आई नीड नॉट टू गो इन मच फॉर दैट. दिस इज़ द मल्टी एंड रीलिंग मशीन. ये बेसिन है और यहाँ से नीचे जटबाउ लगा हुआ होता है, वहाँ से हम दाग, इसमें कोकून होते हैं, वहाँ से वो चढ़ के इस छोटी रील में आ जाता है. दिस इज द रीलिंग मशीन. नाउ रीलिंग प्रोसेस पैरामीटर्स, वहाँ पर क्या क्या हमें स्पीड रखनी है, हाउ मच शुड बी द क्राइजर लेंथ. क्राइजर लेंथ अगेन ए वेरी, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है. उसको हम ट्विस्ट देते हैं इसी मशीन के अंदर. ट्विस्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि वो ऐसे ऊपर से नीचे जाता है, फिर ऐसे आता है, तो 2 दागों को, वो जो धागा इधर से आ रहा है और जो ऊपर जा रहा है, उसमें आपस में हम ट्विस्ट देते हैं. वो ट्विस्ट कितना होना चाहिए, अराउंड 3 इंचेस. उससे क्या होता है,
इट स्मूथन्स, एक तो नेचुरल ट्विस्टिंग हो जाती है किसकी, ऑफ द प्रोट्रूडिंग फाइबर्स, जो उसमें रेशे निकले होते हैं, एक तो उसको वो कर लेता है एग्लोमरेशन, सेकेंडली इट स्क्वीजेज आउट द वाटर वहीं पर, क्योंकि वाटर ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा तो गम फॉर्मेशन, गम स्पॉट ज़्यादा सिल्क में बनेंगे। ओके, ये तो मैंने बताया आपको। यू कैन सी ड्रिलिंग कैसे हो रही है, ये हमारे कश्मीर में है, अच्छा वो एरिया में है, सॉरी अनंतनाग एरिया में। अब देखिए यहाँ पर, ये मैंने रील इसलिए रखी है, ये सिल्क को कैसे सुखा रहे हैं, बाहर सुखा रहे हैं। दिस इज नॉट ऑल्सो रिकमेंडेड, अंडर शेड वी हैव टू ड्राई इट। ये स्कीम्स को इन्होंने बाहर रखा है। अब कश्मीर में क्या है कि वहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, इसके लिए इन्होंने बाहर जल्दी सूखने के लिए ऑर्डर को इनको देना है। यू सी द लस्टर, दिस इज द इंडिजिनियस सिल्क प्रोड्यूस्ड इन J&K। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर ये जो है, हिज नेम इज़ गुलाम महीद, लेट नाउ ही इज़ लेट, गुलाम महीदीन भट्ट, अ वेरी नाइस जेंटलमैन, गॉड फियरिंग। तो मेरे को खींच के घर ले जाता था, नहीं 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 सर आपको आना ही। सो विद आवर एफर्ट्स यू सी द लस्टर ऑफ सिल्क व्हाट ही इज़ प्रोड्यूसिंग। ही वॉज अ वीवर, he has worked in J&K Industries as a technician, as a mechanic, लेकिन ये खुशी की बात है, then he became an entrepreneur, और अपनी फैमिली को भी इसमें, दोनों बच्चों को इसमें लगाना है। He has got the weaving looms also। ये देखिए कितना कोको, ये सिल्क रखा है इधर अलमारियों में। So this is the actual thing, factual, nothing from the book। ये देखिए, इट इज़ इज रीलिंग मशीन। और लेफ्ट साइड में ये जो हमारे मोहिद्दीन साहब कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग द लेसिंग। अब जो मैंने कहा ना कि एंटैंगलमेंट को बचाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लेसिंग। और यहाँ से ये रील हो रहा है उसका कोकून, जो मैंने आपको मशीन दिखाई थी। दिस इज़ द ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन, जिसकी मैंने आपको वो वीडियो दिखा दी। इसमें कंटिन्यूस खुद ऑटोमेटिक ही ये पास आउट ये हो रहा है। ट्रेज में ये कोकून रखे हुए हैं, खुद ही जा रहे हैं, खुद ही वहाँ से उठा रहे हैं। सो दिस इज़ द अचीवमेंट। ये रीलिंग है ऑटोमेटिक की, एंड रीलिंग, ये तो पैरामीटर्स वहाँ पर रीलिंग मशीन, ये स्कीन जो हम बना रहे हैं रीलिंग मशीन में, जो स्टैंडर्ड स्कीन है। व्हाट आर द पैरामीटर्स, कितना लीनियर के लिए कितना RPM रेवोल्यूशन पर मिनट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट इज़ फॉर आवर इंफॉर्मेशन। रीलिंग कंडीशंस कितनी मेंटेन होनी चाहिए, हाउ मच शुड बी द टेम्परेचर, हाउ मच शुड बी, डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट कंडीशंस होती है। एंड देन दिस इज़ द लेसिंग, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन लेसिंग, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं पर यहाँ पर लेसिंग में उधर इधर देखिए ये धागा रखा है, ये धागे को निकाल के उसको सेपरेट कर रहा है उसी में, कंटिन्यूस थ्रेड, फिर लास्ट में वो बांध रहा है, ताकि एंटेंगलमेंट जब हम इससे निकालेंगे, एंटेंगलमेंट गुंजल ना पड़ जाए। स्कीनिंग, व्हाट है ऑलरेडी, लच्छी जब बनाई उसने। बुक मेकिंग, राधिका मैम पूछ रहे थे ना बुक, ये बंडल हम इसको कहते हैं, अब वही हम कहते हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीजन क्यों बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड, ये बंडलिंग है, लेकिन इस चीज़ को हम बोलते हैं बुक, सिल्क बुक, इसको हम कहते हैं बुक मेकिंग। मतलब इस बंडल को हम कहते हैं बुक, दैट इज़ इन आवर टर्म। अगर हम बुक बोलेंगे भाई हमने इतने बुक्स बेच दिए, वो समझेगा वो किताबें बेच दिए, ठीक है, वो उसको हम पहले पता होता है कि भाई ये हमारी सिल्क की बुक्स हैं। तो देखिए ये जो इनका जो है ये वीविंग सेटअप भी है इसका, ये शिफॉन चिनॉन अपने यहाँ बनाते हैं, एंड यूज़ ऑफ सोलर पैनल्स, ये भी एक एडिड चीज़ इन्होंने DIC से ली है, विच वी कुड नॉट प्रोवाइड।
तो एक एंटरप्रेन्योर की अपनी भी ये होती है, तो सोलर पैनल में टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं जाता है, 60-70 डिग्री एट द मोस्ट, वी रिक्वायर बॉइलिंग वाटर। लेकिन ये प्री हीटेड जो उसका आ जाता है उसको कम टाइम लगता है उसमें। एंड इन द रीलिंग बेसिन जहाँ पर हमने उसको डाल रहे हैं, उस रीलिंग बेसिन में हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 45 डिग्री, जहाँ पर हम उसको मशीन को मशीन का बेसिन जो है, कुकिंग में तो होना चाहिए बॉइलिंग या 80 डिग्री जो भी हमने मेथड बताया, लेकिन बेसिन में 45 डिग्री यूजिंग दैट वाटर यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पैसे बचाने का तरीका है, क्योंकि रीलर को बहुत कम फायदा है। चलो थैंक यू। एक्चुअली दिस थिंग इज बीइंग डन बाय आवर टेक्नीशियंस, लेकिन आई स्टार्टेड इन कैरियर 3 मंथ का ट्रेनिंग था, आई एम टॉकिंग अबाउट 90 नहीं, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो हमने 3 महीने इसका, बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ पूरा हमारा कोर्स कुकिंग। अब देखिए बॉइल करने से लॉस, ठीक है, कोई चीज़ कर सकते हैं, सेम थिंग मेरे को फॉलो कर करके। एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रॉड, जो एक रीलर क्या करता है, ही टेक्स आउट अराउंड 20 कोकून्स एंड बॉइल्स इट, जो हम भी टेस्टिंग करते हैं। Here the skill is involved. Now what we do in our industry, suppose a cocoon dip नहीं हो रहे, there are 2 ways. One, we put the cocoon in cocoon cage, cooking cage. सपोज 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, तो जितना उसमें आ सकता है लूजली, देन वी पुट इट इन बॉइलिंग। इसमें थोड़ा सा ये आप कम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक थोड़ा कोल्ड वाटर दीजिए मुझे, कोल्ड वाटर, हाँ ठंडा पानी, ताकि ये पानी स्पिल ना हो जाए, और कुछ नहीं है। अब ये जो है वो मैंने कोकून जो केज बोल रहा हूँ वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसको हम पूरा वो इसमें डाल देते हैं, डिप कर देते हैं, तो ये इमर्स हो जाता है इसमें। एक तो वो है। सेकेंडली, जहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर वी हैव द प्रेसिंग प्लेट्स, ऐसा डंडा उसके नीचे प्रेस, परफोरेटेड, वी पुट इट ऑन दैट, पूरा वो इमर्स हो जाता है। उससे क्या होता है, सपोज मैं अभी ये कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड ब्रशिंग। तो ये ब्रशिंग हमने अभी इनिशियल स्टेज में नहीं करना, वो हमने जब ये पूरा बॉईल हो जाए उसके बाद जब हमने एंड ढूंढना है उसका, तो वहाँ पर हमने इसको यूज़ करना है। अगर हम इसको शुरू से यूज़ करेंगे तो इट में डैमेज द कोकून। तो वो चीज़ क्योंकि यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है, तो इवन इसको भी जो हमारे रीलर्स है इन वेस्ट बंगाल और इन बेंगलोर या हमारे यहाँ, दे डोंट यूज़ दिस ऑल्सो। वो एकदम ये पूरा उनके पास एक छोटा सा डंडा होता है, उसी से पूरा ही करते हैं, उसी। उसको देख, हाँ अभी फ्लॉस है ऊपर से, ठीक है। आप देखिए इसको, ठंडा पानी लाया किसी ने? प्लीज़ प्लीज़, वही है क्योंकि इसमें करंट वरंट तो नहीं आ जाएगा, ठीक। दिस वी आर पुटिंग, मैनिपुलेटिंग इट विद, ताकि ये देखिए, यू आर गेटिंग इट, गेटिंग इट, गेटिंग इट, गेटिंग इट। Now this is the stage where the continuous filament is coming, ठीक है। अब इसको हमने ज़्यादा भी ये नहीं करना है, वी हैव नॉट टू ओवर कुक इट, थोड़ा सा मुझे, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको क्या है, जैसे ये कलर होना है, ट्रांसल्यूसेंट कलर,
इसको मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, वो कलर होना चाहिए। ठीक है, इसमें दिस इज द कोकून। देखिए इसमें वाइट वाइट स्पॉट्स जहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वो अभी पूरा तरह से कुक नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर ट्रांसलूसेंट आपको दिख रहा है वहाँ पर वो पूरा कुक। एंड यू कैन सी द कोकून के अंदर पानी जाना चाहिए, वो विद दैट प्रोसेस व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द मॉर्निंग, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर्स, हवा बाहर निकलनी चाहिए, पानी अंदर जाना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये फ्लॉस निकालते निकालते दिस इज कॉल्ड द सिल्क वेस्ट परसेंटेज। नहीं, आप देखिए ना, आप लोग खुद देखिए, आप लोग खुद देखिए। अब इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे सिल्क के साथ ख़राब भी निकालें, आपको इंडिविजुअली देखना है। जब हम एक लॉट को कुक करते हैं, वहाँ पर जिस कोकून में, जिस पोर्शन में फ्लॉस है, उसी को सिर्फ आपको छेड़ना है। मतलब इसमें अगर सिंगल फिलामेंट आ गया है, उसमें हमने सिल्क वेस्ट नहीं करना, खींचना ही उसको। गॉट इट। ये देखिए, अब इसको हमने निकालना है, हालांकि इसको हम छेड़ते नहीं है, दिस शुड नॉट डैमेज दिस। लेकिन एक कोकून इसमें देखिए, इसमें अभी भी निकल रहा है फ्लॉस, ये देखिए, ये कोकून, यू आर गेटिंग इट। देखिए ये फ्लॉस अभी है, ठीक है। अब दिस फ्लॉस ऑल्सो इज यूज्ड, कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं जाती, नथिंग गोज वेस्ट इन। क्योंकि इधर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसमें मैं आपको जस्ट इट इज़ फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। अब यहाँ पर कितने कोकून हमने डाले हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कोकून्स हमने डाले हैं, ठीक है। अब इसको आप इसमें चढ़ा दीजिए, गॉट इट। लेकिन आपको देखने हैं 10 के 10 कोकून, क्या इसको 0 सेट कर लेना है, ठीक है। क्या 10 के 10 आपके घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं, दैट मीन्स आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए कितने घूम रहे हैं, 5-6 घूम रहे हैं, ठीक है। अब इसको दैट मीन्स ये अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। यही होते हैं, दीज आर कॉल्ड द ड्रॉप कोकून, क्योंकि मैंने कहा इसमें यहाँ पर तो हम पूरी बॉइलिंग नहीं कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट बॉइलिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका पूरा अब देखिए, हम इनको देखिए निकाल लेते हैं, ठीक है। चढ़ गए इस पर एनी नंबर ऑफ कोकून्स विच आर रीलेबल, जो रील हो रहे हैं, अगर 10 रील हो रहे हैं तो 10 वी विल बी टेकिंग फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। सिल्क वेस्ट को भी हम बचा के रख लेते हैं। व्हेन वी डू द टेस्टिंग, whichever comes from any research institute of CSB or state government or university, तो उसका सिल्क वेस्ट से लेके मतलब रीलिंग वेस्ट, बॉइलिंग वेस्ट, वो सारा हम रखते हैं संभाल के अलग से, और उसको हम बाद में सिल्क वेस्ट परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, एंड वी रिटर्न द रिजल्ट्स अलॉन्ग विद दिस टू देम। वी डोंट कीप एनीथिंग विद दिस, सो दैट मच फेयर वी आर, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आप इसमें लगभग हो रहे हैं, सारे घूम रहे हैं। Yes, sir. Isn't it? Though after 90 I am doing this, मतलब दिस एप्रोवेट का काम, क्योंकि हमारे बट स्टिल और यहाँ पे हमें कम दिख रहा है। यहाँ पर आपको लेंथ इन मीटर, ये जो है ये रेवोल्यूशन है, सॉरी दिस इज रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन के बेसिस पर हम length वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1.125 मीटर्स। ओके 1 point हो गया 1 मीटर हो गया, दिखाई तो लगभग ज़्यादा ही है। नहीं भाई, 1 एंड 1.125 में बहुत फर्क है, 1.125 मीटर्स, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं, बट हियर क्या कर रखना है ध्यान, सपोज वी हैव हमारी जो मोटराइज्ड एप्रोवेट्स होते हैं, तो वहाँ पर द स्पीड इज़ कांस्टेंट,
ठीक है, यहाँ पर चूंकि आई एम डिमॉन्स्ट्रेटिंग, कभी मैं बंद कर रहा हूँ कभी ये, तो वहाँ पर क्या है कि वो चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए कंटिन्यूस करना है। अब यहाँ पर जहाँ पर ब्रेक हो गया, सपोज कहीं पर कोई कोकून ब्रेक हो गया, वहाँ पर वो नहीं घूम रहा है, सिल्क नहीं चढ़ रहा है, देयर वी हैव टू स्टार्ट एंड नोट डाउन द रीडिंग। वेयर इज़ योर पैड, कहाँ रखा है योर नोट पैड? रीडिंग बताओ सर, ये ले लो। नहीं, अभी रीडिंग कहाँ होगी? अभी जब टूटेगा तब रीडिंग सर, पर ये एक रेवोल्यूशन 1.125 क्यों बनाया? 1 मिनट क्यों नहीं बनाया? वो 1.125 ना? एक मिनट मैं हाँ, ये पॉइंट है। सर टूटेगा तो पता चल जाएगा ना, नहीं तो जल्दी जल्दी घूमने में तो पता ही चलेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप उसको ये यहाँ फॉर्म से दिख रहा है कि अभी यहाँ से दिख रहा है ना, सारे घूम रहे हैं, सारे घूम रहे हैं। दैट मीन्स सबका सिल्क चढ़ रहा है इसमें। मिनट्स मिरेकल की कितना है? आप देखिए कुछ टाइम लगा, बिकॉज द कोकून्स विच आई हैड ब्रॉट वो इसी स्प्रिंग क्रॉप के थे, और जो आपके वो यहाँ पर हैं, बिकॉज उसमें वो पुराना है, वो उसमें भी आप करके देखिए। इवन इफ आई एम नॉट हियर, आप उनमें भी देख लीजिए कितनी डिफिकल्टी आ जाएगी। ये देखिए, आप इसको भी आप ले सकते हैं सर। नहीं, यू कैन सी ये क्लोजअप से, सो दैट these are all moving, these are all moving। सर ये जो ट्रांसलूसेंट होते जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये पूरे वेट हो गए, और जो अभी वाइट है वो अभी इसका मतलब वहाँ पर है। अब मैंने क्यों उसको, बिकॉज अगर मैं उसको और रखता इधर, यार वी कैन नॉट कंट्रोल इट, ठीक है, तभी मैंने इसको पहले वो भी हो रहा है क्योंकि हॉट वाटर है ना। अगर आप इसको ठंडा पानी डालेंगे अभी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अच्छा, ठीक है। बट व्हेन द एक्चुअल रीलिंग टेक्स प्लेस, द कोकून्स आर प्रॉपरली कुक्ड, तो बाद में यू हैव टू मेंटेन 45 डिग्री इन द बेसिन, क्योंकि हाथ में भी हमें हाथ से उसको कास्टिंग करनी है। तो हाथ से जब कास्टिंग करते हैं तो हाथ को भी जलना नहीं चाहिए। ब्रशिंग भी इसी टाइम पे इसमें अभी इसमें 82 दिखा रहा हाँ? है, इसका मतलब जब हम उसमें कोकून कुकिंग बेसिन में डालते हैं, जो वेसल पैन उसको बोलते हैं, उसमें जब डालते हैं, जब हमें लगेगा हाँ जी ये कुक हो गया, उसी टाइम हमने ब्रशिंग करनी, बट वेरी सॉफ्ट। मैंने कहा ना आपको, वो बिल्कुल छोटा सा उनका डंडा होता है, इतना सा छोटा सा छड़ी टाइप का, उसी से करते हैं। दे डोंट इवन यूज दिस। तो सर बनाया हुआ ये बनाया हुआ है, ये थोड़ा झाड़ू का मैंने उधर से ही लाया था, क्योंकि इतना कैरी करना पड़ा इसको वंदे भारत में। ठीक है, यू सी हाउ द कोकून्स आर मूविंग, सी द नेचुरल थिंग। अगर इसने अपना सिल्क स्पिनरेट से प्रॉपरली नहीं फेंका होता, या कहीं पर भी माउंटेज डिफेक्ट है, एनी डिफेक्ट है, एंड तो यहाँ पर ये नहीं, ये कट जाता है। Here the cocoon seems they have the good drill. इसको जल्दी जल्दी करेंगे तो टूटेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। It is only just for your demonstration purposes I am showing you. अब इसमें क्या है, जो हमारी मशीन होती है वहाँ पर we maintain that tensile, that strength, मतलब जो है ना, the tenacity also. It adds to that. 125। ये तो revolutions है। हाँ, मतलब उससे फिर हम कैलकुलेट करेंगे ना टाइम। दिस कैन बी लेस ऑल्सो। सपोज हमारी छोटी ये होगी, हमें जब हमारे पास फॉर्मूला है उसको कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अगर आप बोलेंगे कि हमारा मल्टी एंड ड्रिलिंग है, सर पहले ही उसमें क्यों नहीं उतना बना दिया है? बिकॉज उसमें भी है कि उसमें इतना अमाउंट ऑफ सिल्क चढ़ना चाहिए मैक्सिमम। सो उसमें ज़्यादा लोड भी नहीं होना चाहिए। उसमें टेंशन देख के उसमें रील में कितना चढ़ना चाहिए, फिर वहाँ से हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू रील। आप देखिए, यू कैन ऑल्सो ट्राई। एक्चुअली दिस वर्क यू हैड टू डू। यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, इसको ऐसे ही उतार देते हैं। है यहाँ पे आने के बाद इस थ्रेड को ऐसे ही उतार देते हैं। हाँ, ये नहीं, ये तो है सिंगल कोकून रीलिंग वी आर डूइंग। व्हाट वी आर डूइंग? सिंगल कोकून रीलिंग। व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर? क्या क्या पैरामीटर्स? एवरेज फिलामेंट लेंथ, नॉन ब्रेकेबल फिलामेंट लेंथ, रीलेबिलिटी, नो, एंड लीनियर। आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला, वेट बाय लेंथ इनटू 9000। एक्चुअल जो आ रहा है वो लेना है।
तो सर ये तो जैसे आपने 10 कोकून साथ में आप डील कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लीनियर के लिए 20 to 22 तो कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनमें कम फिलामेंट जाएगा कुछ में ज़्यादा Yes. है, तो इसीलिए वो लीनियर बाहर से अंदर तक what we are doing, नहीं, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड फैक्टर, दैट इज़ प्रोवन फैक्टर। जो लीनियर है ऊपर से नीचे तक, आउटर लेयर से इनर लेयर कम होता है, दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। That is because a single thread is only losing its thickness from outside. Yes, अच्छा, that is that would be- that is the whatever it is, genetic character or anything. But here what we are seeing, how much is the filament of this lot लेंथ of the cocoon. Then हमने ये, अब हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 20 कोकून का ये ले सकते हैं, 100 कोकून्स भी ले सकते हैं, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इन ऑर्डर टू फास्ट करना, यहाँ पर भी टाइम नहीं था, 10 कोकून हमने ले लिए। तो 10 कोकून से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इस लॉट का कितना फिलामेंट लेंथ है। अगर हमने 10 कोकून को वी हैव टेकन, वी हैव टू फाइंड आउट एक कोकून का डिवाइडेड बाई 10 वी विल डू। अब वाई वी आर टेकिंग 10, एक का अलग अलग करेंगे, एक्चुअली वो भी प्रोसेस है, लेकिन क्या है कि जब वहाँ पर मार्केट्स में होता है तो वी हैव टू बी और यहाँ पर जहाँ पर ब्रेक हो गया, सपोज कोई आपका 500 पर ब्रेक हो गया, यू हैव टू नोट डाउन दैट, यू गॉट इट, 500 भी ब्रेक हो गया तो 500 इज बिकम्स द एवरेज। लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कोकून। अगर हमें नॉन ब्रेकेबल एवरेज नहीं चलेगा, एवरेज तभी हम करें ना, किसी का 600 आएगा, किसी का 700 आएगा, किसी का 800 आएगा, तो मान लीजिए वो ब्रेक हो गया, उसको फिर हम करेंगे, फिर उसको हम थ्रेड निकालेंगे।